آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ اب شہر اورنگ آباد کو ملے گا بھرپور پانی، نئی پائپ لائن اسکیم کا کام تیزی سے ہے جاری۔ ادھر وڑگاؤں کولہاٹی کے لیے 37 کروڑ کی جل جیون مشن اسکیم کا ڈویژنل کمشنر نے لیا جائزہ، کام فوری مکمل کرنے کی دی ہدایت۔ ریاستی حکومت کا بڑا فیصلہ، اورنگ آباد سمیت 8 شہروں میں اسمارٹ سٹی مشن ختم کرنے کا کیا اعلان۔ اب تمام اثاثے اور کروڑوں کے منصوبے ہوں گے میونسپل کارپوریشن کے حوالے۔ جالنہ میونسپل کارپوریشن کے نومنتخب کارپوریٹرز کے لیے جالنہ پولیس کا خصوصی ورکشاپ، جالنہ کے کارپوریٹروں کو سکھائے گئے قانون کے گر، عوامی نمائندے اب ہوں گے قانون سے باخبر۔ اور جالنہ پولیس نے ترت پوری کے بھاگیوان شیوار میں چل رہے ایک بڑے جوئے اڈے کو کیا بے نقاب۔ اس بڑی کارروائی میں 32 افراد کو کیا گیا گرفتار، جبکہ 42 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سامان بھی کیا گیا ضبط۔ اب خبریں تفصیل سے۔ شہر اورنگ آباد کو مئی 2026 تک بھرپور پانی فراہم کرنے کا ہدف طے کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ڈویژنل کمشنر نے نئی پائپ لائن اسکیم کا جائزہ لیتے ہوئے کام کے معیار اور وقت کی پابندی کو لازمی قرار دیا۔ شہر کی نئی واٹر سپلائی اسکیم کی پیش رفت جاننے کے لیے ڈویژنل کمشنر نے میونسپل کمشنر امول ییڈگے اور متعلقہ ٹھیکیداروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ جائکواڑی سے نکشتر واڑی تک پانی پہنچانے کا ٹرائل کامیاب رہا ہے۔ فی الحال شہر کے مختلف حصوں میں پائپ لائن بچھانے کا کام جنگی بنیادوں پر جاری ہے، جس کی وجہ سے سڑکیں متاثر ہو رہی ہیں۔ کمشنر نے ہدایت دی کہ کام مکمل ہوتے ہی سڑکوں کی فوری مرمت کی جائے اور پائپ لائن لیکیج جیسے مسائل کا مستقل حل نکالا جائے۔ شہریان سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ شہر کے بہتر مستقبل کے لیے اس تعمیراتی کام میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ اس منصوبے کا مقصد شہر کی مستقبل کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور پانی کی تقسیم کے نظام کو۔ اورنگ آباد کے وڑگاؤں کولہاٹی میں پانی کا مسئلہ ختم کرنے کے لیے ڈویژنل کمشنر جی شریکانت نے 37 کروڑ روپے کی جل جیون مشن اسکیم کے کاموں کو فوری مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے تاکہ ہر گھر تک صاف پانی وقت پر پہنچے۔ ڈویژنل کمشنر دفتر میں منعقدہ ایک اہم جائزہ میٹنگ میں وڑگاؤں کولہاٹی اور بجاج نگر علاقے کی پانی سپلائی اسکیم کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر مہاراشٹر جیون پرادھیکرن کی چیف انجینئر منیشا پلانڈے اور دیگر اعلیٰ افسران موجود تھے۔ کمشنر جی شریکانت نے واضح کیا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر پائپ لائن بچھانے اور ٹینکوں کی تعمیر کا کام ترجیحی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ انہوں نے کچرے کے مناسب انتظام پر بھی زور دیا۔ دوسری جانب چیف انجینئر نے بتایا کہ سڈکو سے زمین کی فراہمی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جیسے ہی زمین دستیاب ہوگی کام میں تیزی لائی جائے گی۔ اس اسکیم کی تکمیل سے ہزاروں شہریان کو پینے کے صاف پانی کی مستقل سہولت میسر آئے گی اور علاقے کی پانی کی قلت کا دیرینہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ریاستی حکومت نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے اورنگ آباد سمیت 8 مختلف شہروں میں اسمارٹ سٹی مشن کو ختم کر دیا ہے۔ اب تمام اثاثے اور منصوبے میونسپل کارپوریشن کے حوالے کیے جائیں گے۔ محکمہ شہری ترقیات کے نئے حکم نامے کے مطابق اسمارٹ سٹی کے تحت قائم اسپیشل پریز وہیکل یعنی SPV کو اب تحلیل کر دیا گیا ہے۔ اورنگ آباد کے ساتھ ساتھ پونا، ناگپور اور تھانے جیسے شہروں میں بھی یہ مشن اب ختم ہو چکا ہے۔ حکومت نے 30 اپریل تک تمام پروجیکٹس اور اثاثے میونسپل کارپوریشن کو منتقل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس فیصلے کے تحت اسمارٹ سٹی کے مستقل ملازمین کو کارپوریشن میں ضم کیا جائے گا، جبکہ کانٹریکٹ ملازمین کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اب اسمارٹ سٹی روڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور اسمارٹ ٹریفک سسٹم جیسے بڑے منصوبوں کی دیکھ بھال میونسپل کارپوریشن براہ راست کرے گی۔ اس تبدیلی سے شہر کے ترقیاتی کاموں کے انتظامی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی کی توقع ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی فیس نمبر 3 کی عمارت میں اب شہریان کو سیڑھیاں چڑھنے سے نجات ملے گی۔ میئر سمیر راجورکر نے نئی لفٹ کا افتتاح کیا، جس سے معذور اور بزرگ شہریان کو راحت ملنے کی توقع ہے۔ آج صبح 10 بجے ایک تقریب کے دوران میئر سمیر راجورکر نے فیز 3 عمارت میں نصب کی گئی لفٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر امول ییڈگے اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ اس سہولت کے بعد اب شہریان اور ملازمین کو بالخصوص بالائی منزلوں پر واقع
श्री मित्र कक्ष जाने में आसानी होगी। इफ्तिताह के बाद मेयर ने कंट्रोल रूम का दौरा किया और एक टैक्स दहिंदा से फ़ोन पर बात करके उनका शुक्रिया अदा किया। मेयर ने इंतज़ामिया को हिदायत दी कि टैक्स वसूली की मुहिम में तेज़ी लाई जाए और उन जायदाद मालिकान पर तवज्जो दी जाए जिन्होंने अब तक टैक्स अदा नहीं किया है। इस नई सहूलत से कारपोरेशन के कामकाज में भी बेहतरी आने की उम्मीद है और बुज़ुर्ग अफराद के साथ साथ माजूर अफराद भी इससे फ़ायदामंद हो सकते हैं। इसके अलावा आवाम के लिए दफातर तक रसाई मज़ीद आसान होगी। हिनानगर और रशीदपुरे में शहरियान आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जबकि नारियली बाग में ड्रेनेज सिस्टम की खराबी ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है। हिनानगर और रशीदपुरे के रिहायशियों का कहना है कि 10 दिन के इंतज़ार के बाद जो पानी मिलता है वो इंतहाई बदबूदार और गंदा होता है, जो इंसानी इस्तेमाल के काबिल ही नहीं। दूसरी जानिब नारियली बाग में ड्रेनेज लाइनें चौकअप होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है। बारहा शिकायत के बावजूद इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियान ने मुतालबा किया है कि साफ़ पानी की फराहमी और निकासी आब के निज़ाम को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए। शहर की नई वाटर सप्लाई स्कीम के हवाले से 2025 MLD की मेन पाइपलाइन की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। 15 मई से पानी की सप्लाई मुतवक्के है। जायकवाड़ी डैम से नक्षत्रवाड़ी तक बिछाई गई 39 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से कचरा और मिट्टी निकालने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के मुताबिक अगले 10 दिनों में सफाई मुकम्मल कर ली जाएगी। इस स्कीम के जरिए शहर को 200 MLD इजाफी पानी मिलेगा। नक्षत्रवाड़ी पंपिंग स्टेशन और बिजली के सब स्टेशन की टेस्टिंग पहले ही कामयाब हो चुकी है, जिसके बाद अब 15 मई से शहर में बाकायदा आब रसानी की मनसूबाबंदी की गई है। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मंजूर शुदा अराकीन का इंतखाब तनाज़ात का शिकार हो गया है। ज़वाबित को बालाए ताक रखते हुए किए गए इन इंतखाबात पर अब गैर कानूनी होने के इल्ज़ामात लग रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। शहर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मंजूर शुदा अराकीन की तकर्रुरी ने एक नया महाज खड़ा कर दिया है। इंतज़ामी उमूर में माहिरीन की खिदमात हासिल करने के बजाय सियासी असर व रसूख के तहत किए गए इन इंतखाबात पर सवालिया निशान लग गए हैं। मुंबई म्यूनसिपल एक्ट 1949 के मुताबिक उन अराकीन के पास मखसूस तालीमी और पेशा वराना तजुर्बा होना लाजमी है, लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स नज़र आती है। हैरत अंगेज़ तौर पर 10 में से 8 अराकीन को सिर्फ एक ही ज़मरे यानी समाजी तंजीम के ओहदेदार के तौर पर मुंतखब किया गया है। इनमें से BJP के 5 और MIM के 2 अराकीन शामिल हैं। इल्ज़ामात है कि कई अराकीन के पास न तो तदरीसी तजुर्बा है और न ही उनकी तंजीमों का रिकॉर्ड दुरुस्त है। कानून के मुताबिक ये इंतखाब बल्दियाती इलेक्शन के फ़ौरन बाद होना चाहिए था, लेकिन ताख़ीर और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी को हाई कोर्ट के अहकामात की तौहीन करार दिया जा रहा है। बाशऊर शहरियान की जानिब से इलेक्शन कमीशन को शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे इंतज़ामिया और सियासी क़ियादत दोनों कटहरे में खड़े हैं। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स के लिए पुलिस की जानिब से एक खुसूसी कानूनी और सिक्योरिटी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस कैंप का मकसद अवामी नुमाइंदों को समाजी मसाइल और कवानीन से रोशनास कराना था। जालना म्यूनसिपल की बागडोर संभालने वाले 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स को कानूनी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए एक रोज़ा खुसूसी तरबियती कैंप सवाद मेला मुनक़िद किया गया। पुलिस सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार बंसल और म्यूनसिपल कमिश्नर अंजलि शर्मा के हाथों इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में आया। इस वर्कशॉप का बुनियादी मकसद अवामी नुमाइंदों को उन हसास कवानीन से आगाह करना था जिनका ताल्लुक बराह रास्त अवामी तहफ़्फ़ुज़ से है। कैंप के दौरान ATC अफसर सचिन इंगेवाड़ ने मंशियात के खात्मे और नौजवान नस्ल को इससे बचाने पर जोर दिया, जबकि स्नेहा किरीवाड़ ने पोक्सो कानून और ख़वातीन की सिक्योरिटी के हवाले से कारपोरेटर्स के किरदार की अहमियत वाज़े की। इसके अलावा साइबर माहिर संजय सोनोने ने बढ़ते हुए डिजिटल जराइम और उनसे बचने की तदाबीर पर तफसीली रहनुमाई फराहम की। प्रोग्राम में एडिशनल SP आयुष नौपानी समेत दीगर आला अफसरान भी शरीक रहे। ख़वातीन इत्फ़ाल बहबूद कमेटी की चेयरपर्सन सिंधिया दीठे ने प्रोग्राम की अहमियत बयान की और नायब चेयरपर्सन पद्मा मानधने ने शुक्रिया अदा किया। इस तरबियती कैंप से ये उम्मीद वाबस्ता की जा रही है कि अब पुलिस और अवामी नुमाइंदे मिलकर शहर में जराइम की रोकथाम और ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत के लिए ज़्यादा बेहतर तालमेल के साथ काम कर सकेंगे। धन्यवाद आहे। कारण जर आपले लोकप्रतिनिधी जालन्यात
तत्पर आहे तर नक्कीच पूर्ण शहराला आणि सगळे इतर डिपार्टमेंट्सला त्याचा खूप चांगला फायदा होणार आहे. ऑलरेडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और नई कंपनी के दरमियान तालमेल की कमी के सबब शहर में 1 मई से शुरू होने वाला कचरा निकासी का नया निज़ाम ताख़ीर का शिकार हो चुका है। आया रहे कि औरंगाबाद में यौमिया 450 टन कचरे की निकासी के लिए गुजरात की वेस्टर्न इमेजिनरी कंपनी को ठेका दिया गया है। कंपनी ने 525 जदीद गाड़ियां भी तैयार कर ली हैं, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की गई। शहर में 5 से सिर्फ 2 ट्रांसफ़र स्टेशन मुकम्मल हुए हैं, जबकि बिजली और वज़न करने वाली मशीनों का इंतज़ाम भी अब तक अधूरा है। कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ महकमों में तालमेल न होने की वजह से 1 मई से काम शुरू होना मुश्किल नज़र आ रहा है। जालना पुलिस ने तिरथपुरी के भाग्यवान शिवार में चल रहे एक बड़े जुए अड्डे को बेनकाब किया है। इस बड़ी कार्रवाई में 32 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 42 लाख रुपये से जायद मालियत का सामान भी जब्त किया गया है। जिला जालना के पुलिस सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार बंसल को खुफिया इत्तला मिली थी कि तिरथपुरी घनसाओंगी रोड पर एक बड़े पैमाने पर जुआ खेला जा रहा है। इस इत्तला पर मकामी क्राइम ब्रांच और तिरथपुरी पुलिस ने मुश्तरका जाल बिछाकर भाग्यवान शिवार में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान मालूम हुआ कि कल्याण बाबूराव चिमने नामी शख्स अपनी निजी जगह पर झुन्ना मुन्ना नामी जुआ चला रहा था। पुलिस के पहुंचते ही वहां अफरा तफरी मच गई। ताहम पुलिस ने तुंदही से काम लेते हुए जुआ चलाने वाले समेत 32 अफराद को रंगे हाथों धर लिया। मौके वारदात से 4 लग्जरी कारें, 22 मोटरसाइकिलें, 28 मोबाइल फ़ोन और नकद रकम बरामद की गई, जिसकी कुल मालियत 42,43,000 रुपये से जायद बताई जा रही है। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक करीबी इलाकों जैसे घनसाओंगी, अंबड़ और तिरथपुरी से है। पुलिस की सख्त कार्रवाई ने जिले में गैर कानूनी सरगर्मियां करने वालों में खलबली मचा दी है। फिलहाल तिरथपुरी पुलिस ने महाराष्ट्र जुआ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जालना के गांव मालशेंद्रा में चोरों ने सरकारी कुएं से 2 बरकी पंप उड़ा लिए। चोरी की इस वारदात से गांव की पानी सप्लाई ठप हो गई है, जिस पर गांव वालों ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। आया रहे कि जिला जालना के मालशेंद्रा गांव में 24 अप्रैल की दरमियानी रात नामालूम चोरों ने घानेवाड़ी आबी ज़ख़ीरे पर मौजूद सरकारी कुएं से 10 हॉर्स पावर की 2 मोटरें और 150 फीट केबल चोरी कर लिया। सुबह जब वाटर सप्लाई मुलाजिम गजानन जाधव वहां पहुंचा तो चोरी का इंकशाफ हुआ। सरपंच विजय लहाने और देहातियों ने फौरी तौर पर चंदनझीरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सरपंच का इल्ज़ाम है कि गुज़िश्ता 2 सालों से यहां बार बार चोरियां हो रही हैं, लेकिन पुलिस की अदम तवज्जुही की वजह से चोरों के हौसले बुलंद हैं। गांव वालों ने इंतबाह दिया है कि अगर चोरों को फौरी गिरफ्तार न किया गया तो वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से शदीद एहतजाज किया जाएगा। इस चोरी से पूरे गाँव में पीने के पानी का मसला पैदा हो गया है। आज आम्ही चंदनझिरा पोलीस स्टेशनमध्ये आलेलो आहे। आमच्या माळशेंद्रा ग्रामपंचायतची मागच्या वर्षीसुद्धा मोटर त्या ठिकाणी चोरी गेली होती चंदनझिराच्या हद्दीमधून। आमची घाणेवाडी तळ्यामध्ये आमची विहीर आहे ग्रामपंचायतची, आणि त्या विहिरीच्या बाजूबाजूला 100 फुटाच्या अंतरावर दुसरी पण एक विहीर आहे। त्याच्या 150 फुटाच्या अंतरावर परत मांगदेळगावची विहीर आहे। पिंपळगाव, मांगदेळगाव, वंजार उमरत आणि माळशेंद्रा या तिन्ही विहिरी त्या लाईन आहे। 2 वेळेस आमच्या विहिरीहून त्या ठिकाणी केबल, मोटर, स्टार्टर चोरी गेलेलं आहे। 2 वेळेस आम्ही या पोलीस स्टेशनला तक्रारी द्यायला आहे। आतासुद्धा म्हणजे 1 वर्ष पहिले 2 मोटरा चोरी गेल्या। आताही आमचे ते दोन्ही एरियातल्या मोटरा चोरी गेल्या, केबल चोरी गेलेलं आहे। आमचा शिपाई जेव्हा सकाळी तिथे गेला 4ला आणि त्याने 4ला आम्हाला फोन केला। आमच्या गावामध्ये एक लग्नाचा कार्यक्रम आहे, एक मैतीचा कार्यक्रम आहे। हे दोन्ही कार्यक्रम असता कारणासुद्धा गावामध्ये आता पाण्याची टंचाई आहे आणि आम्ही सकाळच्या 4 वाजल्यापासून या पोलीस स्टेशनमध्ये यायला आहे। आता आमच्या उपसरपंचाने PI साहेबांशी सुद्धा बोलणं केलं आहे। मी DYSP साहेबाला बोललो, SP साहेबाला सुद्धा बोलवलं आहे। अद्यापही आमचा गुन्हा दाखल झालेला नाही। आम्ही सर्वप्रथम या चंदनझिरा पोलीस स्टेशनमधून आम्ही सर्वप्रथम इथं या पोलिसाचा निषेध करतो की या ताबडतोब एवढी गंभीर घटना असताना पोलिसाचं काम आहे की आम्ही आता चोरी झाली सकाळच्या 4 वाजल्यापासून ते नाही का पुरं रफादफा केल्यानंतर पोलीस तपास करताना नंतर त्या आरोपीला पकडताना का आमचं म्हणणं आहे की त्या डॉग घ्यावा, आत्ताच्या आत्ता ते जाऊन तपास करावा आणि आम्हाला आमच्या मोटरा सुबित करावा, नाही तर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने व गावाच्या वतीने आम्ही रस्ता रोको पिंपळगावला करणार आहे। औरंगाबाद के पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में एक नौजवान ने पुलिस और सियासी दबाव से तंग आकर खुदसोजी की कोशिश की, जिससे सनसनी फैल गई है। हेमंत जाधव नामी नौजवान एक सियासी लीडर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचा था, जहां उसका इल्ज़ाम है कि पुलिस ने इंसाफ देने के बजाय उसकी तजलील की।
जिस पर दिल बर्दाश्ता होकर हेमंत ने पुलिस स्टेशन के अहाते में खुद पर डीजल डाल दिया। वहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने फौरी मुस्तैदी दिखाते हुए उसे रोका और पानी डालकर उसकी जान बचाई। इस वाक़े ने पुलिस की कारकर्दगी और आम आदमी के साथ उनके रवैये पर बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। कायद्याप्रमाणे हायकोर्टात रोडची केस चालू असताना स्थानिकच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून गुंठेवारीचे खोटं कागदपत्र महानगरपालिका असो पोलीस स्टेशनला दाखवून याबद्दल कागदपत्र तर दाखवलेच आणि त्यावर कोणतेही ऍक्शन न घेता काही रात्री फोन करून गुंडे पाठवले मारण्यासाठी। त्याच्याबद्दल रितसर मी तक्रार दिली। त्यांना सांगितलं तुम्ही चौकशी करा। चौकशी केल्यानंतर त्यांना रेकॉर्डिंग दाखवली। तो कोण डोंगरे साहेब म्हणून आहे, प्रकाश डोंगरे, गेल्या 1.5 महिन्यापासून मला फोन करून त्रास देत आहे, तू इथं ये मला दाखव। आज त्यांना प्रूफ दाखवल्यानंतर ते माझ्याकडनं कोऱ्या पेजवर सही घेत आहे की तू कंप्लेंट पाठीमागे घे। आणि कारण फक्त एक की संजय हडोळे पाटील ज्याला म्हणतात रेणुकानगरचा, त्या माणसाने महानगरपालिकेच्या रिकाम्या जमिनीवर अतिक्रमण केले। माझा काही संबंध नसताना तो बळजबरी माझं नाव त्याच्यामध्ये आणतोय आणि ते समोरच्या माणसाला पाठवून सांगतोय की तू पैसे वगैरे माग त्यांच्याकडनं, त्याला सुधरून नको। या संबंधित रेकॉर्डिंग सुद्धा मी सबमिट केली, तरी मला आज हा त्रास झाला। त्यानंतर सुद्धा ते म्हणताय की तुम्ही आणखी व्हिडिओ प्रूफ आणा, तुम्ही लोक घेऊन या। मग यांचं काम काय, हे चौकशी का करत नाही? जर मी व्हिडिओ प्रूफ आणू, सगळ्या गोष्टी मीच आणू, मग हे चौकशी का करत नाही? हे म्हणतात चौकशी करायचं माझ्याकडे काम नाही, माझ्याकडे ऑलरेडी 100 केसेस आहे, 50 केसेस आहे, या प्रकारे उत्तर देत आहे। आणि त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीला कंटाळून आज मला हा पर्याय होता, बाकी काहीच नाहीये। तुमचं नाव? माझं नाव हेमंत अंबादास जाधव। जालना के गोंदेगांव फाटे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए। जालना में कल दोपहर उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों को कुचल दिया। जहां बहक होने वाले नौजवानों की शनाख्त 28 साला छत्रगवन फुलझाड़े और 32 साला यशवंत मिसाल के तौर पर हुई है, जो देवमूर्ति गांव के रिहायशी थे। हादसा इतना शदीद था कि मोटरसाइकिल के पर्चे उड़ गए और दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे के बाद देवमूर्ति गांव में सोग का माहौल है और लवाहिकीन का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी तलाशी जारी है। इस वाक़े ने एक बार फिर शाहराहों पर तेज़ रफ्तारी और लापरवाही से होने वाले हादसात पर तशवीश पैदा कर दी है। आमचे बंधूच आहे, दोन मुलं आमच्या भावाने नवीन शेती घेतली थारला, तर त्यानिमित्त आम्ही गाव जेवण ठेवलं होतं डाळबट्टीचं। हे मुलं आमचे जेवण सनी परत देवमूर्तीकडे येत असताना गोंदेगाव फाट्यावर इनोव्हा कंपनीची 4 व्हीलर गाडी येत होती आणि आमची डेलस गाडी होती। 2 मुलं आमच्या साईडने येत होते। एक आमचा बंधू होता शत्रगुण पंढरनाथ फुलझाडे, वय जवळपास 28-29 वर्ष, आणि दुसरा शत्रगुण शामराव मिसाळ, वय 32 वर्ष। या दोघांचा डेलस गाडी 2 व्हीलर येत असताना इनोव्हा गाडीने त्यांना पाठीमागून धडक दिली। इनोव्हा गाडीचा नंबर आहे MS21V 9799 इनोव्हा गाडी। या गाडीनं पाठीमागून उडवलं। तो पोलीस स्टेशनला आता कल्पना दिली, आता घाटीमध्ये आणलेले आणि पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट दिलेली। जालना में सड़कों पर पटाखे छोड़ती और तेज शोर मचाती बुलेट मोटरसाइकिलों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शहरियान की शिकायत पर ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मुहिम चलाकर कई साइलेंसर भी जब्त किए हैं। जालना शहर की सड़कों पर गैर कानूनी मॉडिफाइड साइलेंसर के जरिए शोर मचाने वालों की अब खैर नहीं। जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार मंसिल की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई का आगाज़ किया है। 23 अप्रैल को शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर नाकाबंदी की गई, जहां कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर न सिर्फ जुर्माना आयद किया गया, बल्कि 3 गाड़ियों के तेज़ आवाज़ वाले साइलेंसर मौके पर ही जब्त कर लिए गए। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ियों के असल ढांचे में ऐसी कोई भी तब्दीली गैर कानूनी है। सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर अनंत कुलकर्णी और इंस्पेक्टर सुरेश अनौनोय की क़ियादत में टीम ने नौजवानों को ट्रैफिक कवानीन की सख्ती से पाबंदी करने की हिदायत दी। पुलिस का कहना है कि ये मुहिम अब मुसलसल जारी रहेगी ताकि शहरियान को सौती आलूदगी और जहनी अजियत से निजात दिलाई जा सके। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अब शहर औरंगाबाद को मिलेगा भरपूर पानी, नई पाइपलाइन स्कीम का काम तेजी से है जारी। उधर वडगांव कोल्हाटी के लिए 37 करोड़ की जल जीवन मिशन स्कीम का डिविजनल कमिश्नर ने लिया जायजा, काम फौरी मुकम्मल करने की दी हिदायत। रियासती हुकूमत का बड़ा फैसला, औरंगाबाद समेत 8 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन खत्म करने का किया ऐलान।
अब तमाम असासे और करोड़ों के मंसूबे होंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले। जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नौमुंतखब कॉरपोरेटर्स के लिए जालना पुलिस का खुसूसी वर्कशॉप। जालना के कॉरपोरेटरों को सिखाए गए कानून के गुर, अवामी नुमाइंदे अब होंगे कानून से बाखबर। और जालना पुलिस ने तिरथपुरी के भाग्यवान शिवार में चल रहे एक बड़े जुए अड्डे को किया बेनकाब। इस बड़ी कार्रवाई में 32 अफराद को किया गया गिरफ्तार, जबकि 42 लाख रुपए से जायद मालियत का सामान भी किया गया जब्त। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।